So, good morning, dear students. Today onwards, we are going to start Standard 12th Mathematics. So, before NDA training program, I had completed your Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, Differentiation, Continuity, and Application of Differentiation. So, today onwards, we'll start integration. So, when we say integration, in the meaning of integration, in a one word we can say it is an antiderivative. Integration is a reverse process of differentiation. So in one word we can say integration is a reversed process of differentiation. Correct? This is in one sentence we can define integration. Correct? So integration is a reversed process of differentiation. So to understand more to this, now take an example. Let's say y equals to sine x. Fine. When you differentiate with respect to x, this becomes sine x is cos x. Fine. Now dy equals to cos x into dx, and therefore y equals to this 1 by d came this side and cos x dx here. This 1 by d, mathematician, they named it this 1 by d as a integral. Look at this sign, integral sign, and this is cos x into dx, which is y. Now y equals to sin x plus c. If I'll take, suppose this curve sin x plus c, so derivative is again cos x only, because the derivative of constant is 0. So here we can write in place of y, sin x plus c is equals to integral cos x dx. Fine. So this is what, this way the integration came from the reverse process of derivative. So y equals to sin x, which is our curve, y equals to sin x plus c. When we differentiated dy dx, it came cos x. dy equals to cos x into dx, and then 1 by d cos x. Di send it this side, and this 1 by d is known as integral sign. Correct? Cos x dx, which is y, and we took sin x plus c. So the integration of cos x dx came sin x plus c. So the derivative of sin x is cos x, and the integration of cos x is, now it came sin x plus c, where c is said to be constant of integration. Constant of integration. Correct? C is known as constant of integration. And this c also leads to a indefinite integration, because for this part to understand, we'll move to look at this. So till here we came to know that integration is the reverse process of derivative. तो अब आप देखो कि sin x का डेरिवेटिव cos x है और cos x का इंटीग्रेशन sin x आया. तो ये जो साइन हमने 1 by d के लिए लिया, ये इंटीग्रल साइन, करेक्ट, ये बेसिकली सम ऑफ इंटरवल्स है. ठीक है, ये इंटीग्रल की साइन सम ऑफ इंटरवल्स है ऑफ दैट कर्व. ठीक है, उनका ही ये एस पार्ट है, इसी को एलोंगेट किया गया है, तो ये साइन एस बन गई. ठीक है, तो बेसिकली 1 by d स्क्वायर भी होता है, वो डबल इंटीग्रेशन होता है, एंड सो ऑन इट गोज. करेक्ट. नाउ दिस c is constant of integration. Basically it provides family of curves. So अगर मैं इंटीग्रेशन की जो फिजिकल मीनिंग बोलूँ और ज्योमेट्रिकल मीनिंग अब डिफाइन करूँ मैं इसको इस तरह से कि इंटीग्रेशन बेसिकली इट प्रोवाइड्स the area of the curve y equals to sin x plus c. फिजिकल मीनिंग लाइक cos x, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई. ठीक है, सो लेंथ इनटू विड्थ वी विल गेट एरिया.
So the physical meaning of integration, we can say the integration, what does integration? Measures the area of the curve, correct? And this c when we have attached, when we came to know, when we integrated cos x dx, it came sin x plus c. ये जो c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमें फैमिली ऑफ कर्व्स प्रोवाइड करता है। इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गई इंटीग्रेशन की। इस बात को थोड़ा और डिटेल समझ लें। Look at this. Let's say I have curve y equals to sin x plus 2. Y equals to, let's say, sin x plus 100. 1000, you can say. Y equals to sin x minus 20. So, and so on, you will have the curves. So, if you differentiate all these, you will get dy by dx for all these curves. Dy by dx for all these curves, it is going to be cos x only. Look at this. किसी भी कर्व को आप इनमें से किसी भी कर्व को डॉट 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 हमने ले लिया तो ये हमेशा अपने को cos x ही देगा डेरिवेटिव, ठीक है? तो अगर मैं cos x को इंटीग्रेट करूं, जो हमने यहाँ पे दिखाया आपको, सो ये cos x का जो इंटीग्रेशन आया cos x dx, दिस कैन बी sin x plus 2 भी लिख सकता हूँ मैं, sin x plus 1000 भी लिख सकता हूँ, correct? मैं sin x minus 20 also we can write, so and so on. These are the integration. That means the integration of cos x provides you the family of curves of sin x, correct? So दो aspect हो गए कि integration, what does integration? Measures the area under curve, and secondly integration, the physical meaning you can say integration of any curve provides the family of curves, ठीक है? तो ये दो चीज़ों को ध्यान में हमें रखना है। अब ये जो सी आई, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, ये हम हर एक इंटीग्रेशन के बाद वी अटैच, बिकॉज दोज आर फैमिली ऑफ कर्व्स। सो इंटीग्रेशन में अभी हमने देखा कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स्ड प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, या इसको आप एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। अगर हमें sin x का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या मिला अपने को? sin x plus c, ठीक है? सो दैट इज वाई इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव ऑल्सो। फाइन डियर, तो ये वी केम टू नो द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जो हमें 12th में इंटीग्रेशन के बारे में सीखना है फ्रॉम स्क्रैच यू कैन से, तो इनके लिए हमें उनके रूल्स, इनके फॉर्मूलाज हमें समझ के लेने होंगे। तो इंटीग्रेशन के अंदर डियर, सबसे पहले मैं रूल्स की बात करूं, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ऑल्दो वी केम टू नो इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट एंड दोज आर वेरी सिंपल वन। फर्स्ट रूल हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। फंक्शन एफ एक्स का है तो विड्थ भी डी एक्स होगी। तो आप कांस्टेंट को बाहर करते हैं और फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है? के इंटू एफ एक्स डी एक्स। सेकेंड रूल में हम डिस्कस करें तो अगर इंटीग्रेशन हमें एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स एंड सो ऑन टर्म है इंटू डी एक्स, अगर फंक्शन हमारे इंटीग्रेंड कहलाते हैं, ये पार्ट जितने हैं इसको हम इंटीग्रेंड कहते हैं, और ये इंटीग्रेशन की साइन है और ये पूरी प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाती है। तो हम इसको सेपरेटली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एक्स प्लस एच एक्स इंटू डी एक्स एंड सो ऑन, करेक्ट? हम पार्ट बाई पार्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर इसमें अगर माइनस लगा हुआ है, माइनस है, तो आप बीच में अपना माइनस भी डाल सकते हैं। तो वेरी सिंपल, सेपरेटली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स अलग अलग आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास डियर, थर्ड रूल यूज कैन से प्रोडक्ट रूल, यू इंटू वी रूल कहते हैं इसको, जो हमने थोड़ी देर लेटर ऑन, मतलब 2-3 लेसन के बाद ही हम यू इंटू वी रूल डिस्कस करेंगे, जहाँ पे u और v दो फंक्शंस ऑफ x हैं, टू डिफरेंट फंक्शंस ऑफ x, ठीक है? उस रूल में हमें
u outside, integration of v minus derivative of u with respect to x into फिर से इंटीग्रेशन हमने v dx कर दिया और ये टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये u इंटू वी रूल है। यहाँ पे u और v लेने के लिए हमारे पास रूल है विच इज़ आइलेट। तो ये सारी बातें हम बाय पार्ट्स में सीखेंगे। इस u इंटू वी रूल को हमें बाय पार्ट्स नाम भी मैथमेटिशियन ने रखा है, बाय पार्ट्स। ठीक है, u इंटू वी रूल फिर से देख लीजिए। वेट, थोड़ा ये कहीं टर्म में करेक्ट। तो ये हमने u इंटू रूल जो था बाय पार्ट्स, दैट वी केम टू नो। ठीक है, आइए सो अब नाउ वी विल डिस्कस। यहाँ से आप देखें जो हमने ये कुछ रूल के बारे में डिस्कस किया। अब हमारे पास इंटीग्रेशन के टेबल है, वैल्यूज हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला भी यू कैन से, तो फॉर्मूला में हमारे पास पहला आता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। ठीक है, x टू द पावर n dx ये हमारा इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, where n is not equals to minus वन। दिस यू हैव टू रिमेंबर, n वन के माइनस वन के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, x टू द पावर n। अब आप बोलेंगे इसकी इंटीग्रेशन ऐसे कैसे हुई? तो अगर आप इस टर्म को राइट हैंड साइड को इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट fx विच इज x टू द पावर n। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एन एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अगर मैं x टू द पावर n देख लो यहाँ पे, अगर मैं इस x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी को डिफरेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें ये fx मिल जाएगा। ठीक है, लुक एट दिस, अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो n प्लस वन पावर इधर आया। ठीक है, और x टू द पावर n प्लस वन में वन माइनस हुआ x टू पावर n प्लस वन कॉन्स्टेंट थी, c का डेरिवेटिव जीरो, तो दिस एंड दिस गेट कैंसिल, x टू द पावर n लेफ्ट जो हमारा fx है ये। ठीक है, तो दिस वे वी नो दैट एंटी डेरिवेटिव इट इज। इसके अंदर डेयर में डबल रिजल्ट लिखूंगा। अगर मेरे पास ये ax प्लस बी होल टू द पावर n है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और ये ax प्लस बी लीनियर होना चाहिए, तो ये ax प्लस बी होल टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाती है, एंड प्लस c, हियर ऑल्सो n नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, सो ये ax प्लस बी वाला होल टू द पावर n का फॉर्मूला आ गया, ax प्लस बी टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। बेसिकली ये सब्सटीट्यूशन के अकॉर्डिंग आता है, बट आप अभी से ही समझिए, सब्सटीट्यूशन में भी आपको ये समझ में आएगा कि ax प्लस बी को t लेने के बाद when you integrate you will get this one, but from here only you have to remember also. Let's say मैं अगर एग्जाम्पल से बात करूँ, सो अगर मुझे इंटीग्रेट करना है 2x प्लस फाइव, क्योंकि ax प्लस बी लीनियर होना चाहिए, माइनस थ्री बाई टू डी एक्स। सो मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूँ इस अबव रिजल्ट से, क्योंकि 2x प्लस फाइव माइनस थ्री बाई टू को अगर एक्सपेंड करोगे तो वो इन्फानाइट सीरीज की ओर जाएगा। बट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट 2x प्लस फाइव टू द पावर माइनस थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस थ्री बाई टू प्लस वन इंटू कोफिशिएंट ऑफ x विच इज टू। ठीक है, एंड प्लस c, then we'll simplify further or we will get the answer. ठीक है, so this is what advantage of learning ax plus b whole to the power n. आप इस तरह के इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, now look at this second result we have written. थर्ड रिजल्ट में हम आते हैं डियर। थर्ड रिजल्ट इज गोइंग टू बी, जैसे हमने देख लिया उधर कि ये x टू द पावर n dx जब n नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, अगर n इक्वल्स टू माइनस वन हुआ तो क्या होगी रिजल्ट, दैट मीन्स वन बाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हम पता करते हैं वन बाई एक्स इसकी डेरिवेटिव होती है लॉग एक्स की, तो ये लॉग एक्स प्लस सी हो गया। कब, जब n इक्वल्स टू माइनस वन था, क्योंकि पहले रिजल्ट में हमने क्या लिखा है
n not equals to -1. ठीक है, so this is the formula. When n equals to -1, that means x to the power -1, so which is 1 by x dx. ठीक है, and the integration of this is going to be log x. क्योंकि पता करते हैं ये किसका डेरिवेटिव है, तो ये log x का डेरिवेटिव है. सिमिलरली इसी रिजल्ट में हम जनरलाइज कर सकते हैं dx अपॉन ax प्लस बी भी ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी x प्लस बी का पावर -1 आया, तो ये भी क्या होगा log ax प्लस बी. मॉड में भी रखते हैं लॉग को इंटीग्रेशन में, एंड x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा प्लस c, पूरे को डिवाइड करेगा. सो 1 अपॉन ax प्लस बी इज log ax प्लस बी अपॉन a प्लस c. करेक्ट. इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ऐसा भी समझो, अगर हमें इंटीग्रेट करना है dx अपॉन 3x माइनस 5, यू कैन राइट डायरेक्टली log 3x माइनस 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इज 3 प्लस c. ठीक है, with the help of this result, fourth result, dx upon ax plus b is log ax plus b upon a plus c. Find here. So अब तक हमने 4 रिजल्ट देखा. फर्स्ट इज x टू द पावर n dx, ax plus b होल n dx. फाइन. फिर मैंने n इक्वल नॉट इक्वल्स टू -1 यहाँ लिया इस रिजल्ट में. जब n इक्वल्स टू -1 है तो दैट बिकम्स 1 by x dx एंड विच इज log x plus c. और सिमिलरली इसी को ax प्लस बी में फॉर्म में डाला, dx अपॉन ax प्लस बी, दैट इज ऑल्सो log ax प्लस बी अपॉन a. एंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ax प्लस बी, ये लीनियर होना चाहिए. दिस शुड बी लीनियर. लीनियर ही है, x का पावर 1 है, सो ax प्लस बी शुड बी लीनियर. करेक्ट. b 0 हुआ तो भी चलेगा. सपोज मान लो आपको dx अपॉन 2x का इंटीग्रेशन चाहिए. करेक्ट. तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, log 2x upon 2 plus c. ठीक है, this way you can write with the help of this formula dx upon ax plus b. So there, after these four result, we'll move to some more result. Look at this. I believe आपको ये सारे रिजल्ट याद भी हैं, हाँ? तो फिर से एक बार जस्ट रिकैप हो रहा है. फिफ्थ रिजल्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर dx, e टू द पावर x dx. इसकी इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होती है, e टू पावर x प्लस c. करेक्ट. इसमें भी अगर मैं ax प्लस b का फॉर्मेट डाल दूँ, e टू द पावर ax प्लस b इंटू dx, तो ये भी क्या होना है डियर, e टू द पावर ax प्लस b. करेक्ट. और अपॉन डिवाइडेड बाई a प्लस c. ठीक है, ax प्लस बी शुड बी लीनियर, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है. करेक्ट. लेट्स से अगर मैं इंटीग्रेट करूँ e टू द पावर -2x प्लस 3/2 को इंटीग्रेट करूँ इसको, तो हमने क्या इंटीग्रेशन लिखना है, e टू द पावर -2x प्लस 3/2 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा -2 प्लस c. सो दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -2x प्लस 3/2 with the help of sixth result. ठीक है, e to the power ax plus b dx is e to the power ax plus b divided by the coefficient of x. ये हम हमेशा हर एक फॉर्म में ax plus b वाले रिजल्ट को करेंगे. करेक्ट. आइए नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं. दिस वी केम टू नो e to the power x. नेक्स्ट इज दिस रिजल्ट वी हैव रिटन सिक्स्थ वन. 7 देखो. Seventh one is integration of a to the power x dx. Fine. Where a is constant other than a not equals to 1 and a not equal to 0. So this is a to the power x into log a. Sorry, a to the power x upon log a it is. This is a to the power x upon log a it is. So integration of this is a to the power x upon log a plus c, where a not equals to 1 and a greater than 0. ठीक है.
और ए जीरो भी नहीं होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो भी कर दीजिए। फाइन। सो ए इज अ कांस्टेंट। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, व्हाट इज गोइंग टू बी फोर टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो आप क्या लिखेंगे, फोर टू द पावर एक्स अपॉन log 4 प्लस सी। फाइन। दिस वे द मीनिंग ऑफ ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन। इसके अंदर भी आप वो ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट डाल सकते हो। लेट्स से ए टू द पावर टी एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन विल बी ए टू द पावर टी एक्स प्लस बी अपॉन लॉग ए, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, टी, तो वो यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। सो दिस वे e to the power tx plus b also we can integrate. लेट्स से एग्जाम्पल लीजिए इसका। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, फोर टू द पावर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। सो इसकी इंटीग्रेशन हमें क्या लिख देना है, फोर टू द पावर माइनस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई लॉग फोर, और x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस वन, तो माइनस वन से यहाँ इंटू हो जाएगा, एंड प्लस सी। सो दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ फोर टू द पावर माइनस एक्स प्लस टू डी एक्स, ठीक है। सो ये अब तक आपने ये 7 to 8 रिजल्ट दिखा। ये सारे रिजल्ट आपको याद रखने हैं डियर। ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर टी एक्स प्लस बी, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी, ठीक है, डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, वन अपॉन एक्स, ए एक्स प्लस बी होल एन, एंड एक्स टू द पावर एन। आई बिलीव यू ऑल ऑफ यू आर रिमेंबर्ड, क्योंकि एनडीए में आपने ये सब रिजल्ट लर्न भी रखा था, तो ये आपको कंटिन्यू रखना है यहाँ पे 12th के इंटीग्रेशन के लिए भी, ठीक है डियर। चलिए, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट इज विल टेक सम इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट आई एम टेकिंग साइन एक्स डी एक्स। सो वी नो दैट ये किसका इंटीग्रेशन है, तो ये माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, बिकॉज माइनस कॉस एक्स प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल गेट साइन एक्स, ठीक है। इसमें भी हम ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट लगा दें, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज नथिंग बट माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड एंड प्लस सी, ठीक है। और ए एक्स प्लस बी हमेशा लीनियर ही होगा, ठीक है डियर, जिससे हमें कन्वीनियंट ये होगी कि ऐसे इस तरह के इंटीग्रेशन आप इजीली कर पाएंगे। लुक एट दिस, अगर मैं बोल दूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस फोर एक्स प्लस सेवन इंटू डी एक्स, सो मैं इंटीग्रेशन इसका मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस माइनस फोर एक्स प्लस सेवन, ठीक है, माइनस फोर एक्स प्लस सेवन इट इज, प्लस सेवन डिवाइडेड बाई माइनस फोर, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस फोर, एंड प्लस सी, ठीक है। सो फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो ये क्या मिलेगा अपने को, कॉस ऑफ माइनस फोर एक्स प्लस सेवन अपॉन फोर प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस फोर एक्स प्लस सेवन इज cos of minus 4x plus 7 upon 4. With the help of this formula, sin ax plus b is minus cos ax plus b upon a. x के कोफिशिएंट से डिवाइड पड़ता है, ये ऑलवेज यू रिमेंबर। sin x तो याद रखना ही है, दैट इज माइनस cos x, करेक्ट। और sin ax plus b ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज एंगल में यहाँ पे x के साथ एक कोफिशिएंट a जुड़ा हुआ है, b का कोई रोल नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं और एक एग्जाम्पल ले लूँ, साइन सेवन एक्स बाई टू, इसका इंटीग्रेशन देखना है, हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस सेवन एक्स बाई टू एंड डिवाइड बाई सेवन बाई टू, ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी। और दिस ऑल्सो वी कैन राइट माइनस टू बाई सेवन इंटू कॉस सेवन एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है, minus 2 by 7. So this way the advantage of
रिमेंबरिंग दिस साइन ए एक्स प्लस डी डी एक्स, सो दैट ऐसे ये छोटे इंटीग्रेशन जो है वो इजीली फिंगर पे हो जाएंगे. नो नीड टू गो फॉर स्मॉल सब्सटीट्यूशन ऑल्सो. दैट इज वाई यू हैव टू रिमेंबर दिस. ये जो साइन ए एक्स प्लस बी या ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी कह रहा हूँ, उसको याद रखने से ये एडवांटेज होगी. ठीक है डियर. तो आप छोटे से ये 7x/2 को सब्सटीट्यूशन से बच जाओगे. करेक्ट. सो हर रिजल्ट में आप देखो ए एक्स प्लस बी का कंसेप्ट जोड़ रहे हैं. करेक्ट. सो ये बाय वन गेट वन वाला हिसाब है. बाय वन फॉर्मूला बाय कीजिए, दूसरा फॉर्मूला फ्री में ले जाइए. ठीक है. नाउ विल डू टू गो फॉर some more result. I believe sin ax plus b have written 10th one. So we'll move to the 11th. 11 में मैं ले लूँ cos x dx. ठीक है, which is sin x plus c. Naturally sin x का डेरिवेटिव cos x होता है. अब इसमें भी आप रिजल्ट लगा दीजिए cos ax plus b का. ठीक है डियर, which is sin ax plus b, x plus b. वेट, थोड़ा स्लिप कर रही है पेन. सो cos ax plus b is nothing but sin ax plus b divided by a plus c. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं 13th. इंटीग्रेशन ऑफ. अब मैं उनके इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ जिसका डेरिवेटिव आपको लर्न है. जैसे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये पता है ये किसका डेरिवेटिव है, तो tan x का है. तो tan x प्लस सी हो गया डेयर. नेक्स्ट इसमें ए एक्स प्लस बी लगा दूँ. सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स. तो ये भी क्या हो जाएगा, tan ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, एंड प्लस सी. ठीक है, प्लस सी. फाइन. सो इन सब के बेसिक इंटीग्रेशन आपको लर्न रखने हैं. नेक्स्ट इज सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स, which is all of you know sec x plus c, sec x plus c. This is plus c area, sec x plus c. Next इसमें ही अगर आपने sec ax plus b into tan ax plus b लगाया, tan ax plus b into dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, sec ax प्लस बी अपॉन ए प्लस सी. ठीक है. सो डियर देखो, आपको ये सारे इंटीग्रेशन पता है, आई एम 100% श्योर, बट वी मस्ट टू गो थ्रू ऑल दिस फॉर्मूला सो दैट एक बार रिकैप हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x इंटू cot x dx is equals to minus cosec x plus c. ठीक है. इसी में आप cos ax plus b लगा दीजिए. cos ax plus b cosec ax plus b into cot ax plus b, ax plus b always linear, dx equals to minus cosec ax plus b divided by a प्लस सी. ठीक है, ये ऐसे प्लस सी इधर है. सो दीज आर द बेसिक इंटीग्रेशन दैट ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर. फाइन. नाउ नेक्स्ट वी विल हैव लुक एट दिस cosec square x, cosec square x, cosec square x dx. ये माइनस कॉट एक्स होता है क्योंकि माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव cosec स्क्वायर एक्स होगा, प्लस सी. एंड इसमें ही आप ए एक्स प्लस बी लगा दीजिए. cosec स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज नथिंग बट माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी. फाइंड हियर.
तो ये कुछ इंटीग्रेशन है जो आपको याद भी हैं, जो रखना भी याद इंटीग्रेशन के लिए। देखिए इसके पीछे हमारा पर्पस ये है, ये एक्स प्लस बी लाने का, कि एक बड़े काम से आप बच जाते हो। जो भी सेक स्क्वायर 2x+3 है तो डायरेक्टली tan 2x+3 अपॉन 2 लिख सकते हो। इफ सपोज सेक 5x+4 इंटू tan 5x+4 का इंटीग्रेशन है तो डायरेक्टली यू कैन राइट सेक 5x+4 अपॉन 5। तो दैट इज़ वाई ये ए एक्स प्लस बी के प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है आपको, साथ पैरेलल ही याद रखिए। फाइंड एयर, सो ये हमने उन सबों का लिखा जिसका डेरिवेटिव लर्न था। अब हमारे पास वो इंटीग्रेशन है जिसके आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, जैसे सेक एक्स डी एक्स। ये होगा डियर लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है, प्लस सी। इसके अंदर आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक ए एक्स प्लस बी भी याद रख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स विच इज लॉग सेक ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी हर एक रिजल्ट में आप लगाएंगे और उसको याद रखना है डियर, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन इंटीग्रेशन और बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस भी आएगा। और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस यहाँ में सी डाल दो। यहाँ पे 2 बार ए से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए एक्स ही है, तो यहाँ डिवाइड बाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज ए, ठीक है डियर। नेक्स्ट देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx विच इज log sec x, इसे log sec x प्लस सी, ठीक है। इसमें भी आप ए एक्स प्लस बी लगा सकते हो, tan ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू log sec x sec ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, ठीक है। सो tan ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज log sec ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, ठीक है डियर। तो ये sec x tan x हो गया। देन लेफ्ट विथ वी हैव another result cosec x dx। ये हो गया हमारे पास log cosec x माइनस cot x प्लस सी। इसी तरह इनका cosec x प्लस बी का भी आप कर सकते हैं, ठीक है, दैट यू कैन राइट योर सेल्फ। देन वी हैव cosec x cot x, cosec x डन, tan x डन, tan x sec x, ठीक है, sec x tan x cosec x एंड वी हैव 1 cot x dx। ये क्या हो गया, log sin x प्लस सी, ठीक है। आप इसके साथ दूसरा भी लिख सकते हैं, sin cot x प्लस बी भी, नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ cot ए एक्स प्लस बी का भी रिजल्ट लिख सकते हैं। मैंने ऊपर वाला छोड़ दिया, दैट यू हैव टू राइट योर सेल्फ। दिस इज log sin ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ cot x केम दिस। सो ये साहब, ये पूरे जो है इंटीग्रेशन जो मैं लिख रहा हूँ, इन सभी को आपको याद रखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम x टू द पावर n से e टू द पावर x, e टू द पावर x, और ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वन, sin x cos x, ठीक है, tan x cosec स्क्वायर x एंड ऑल दीज। थोड़ा आपको भी ऑकवर्ड लग रहा है कि सर ये सारे रिजल्ट मुझे पता है, वेरी गुड, आपको सब पता है, बट ये एक रिकैप है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। देन देयर वी हैव सम इनवर्स फंक्शन के भी इंटीग्रेशन है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है किसका डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का, ठीक है, दिस इज tan इनवर्स x प्लस सी, करेक्ट। ये फिर dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स, स्लिप कर रहा है पेन, साइन इनवर्स x प्लस सी, ठीक है, dx अपॉन x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1
ये होता है डियर सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स दिस इज सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसके अंदर डियर अगर ये माइनस हो जाए, माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। माइनस ऑफ दिस इज कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर हमारे पास माइनस डी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, what we can write cos inverse x also, ठीक है। एंड माइनस डी एक्स अपॉन, जनरली ये सिचुएशन आती नहीं है बट माइनस रखा है ऑप्शन में है cos इनवर्स कॉट, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि माइनस जनरली स्टूडेंट दे टेक टुक आउटसाइड। सो अगर नहीं ले रहे हैं तो हमारा आंसर cos इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स होगा, और माइनस ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 is nothing but cosec inverse x plus c, फाइन। सो ये अनदर 6 रिजल्ट है इनवर्स के जो याद रखने हैं, एंड डाउन द लाइन वी विल डिस्कस सम मोर रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल फंक्शन, जो हम इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद वो सारे रिजल्ट मेंशन करेंगे। तो अब तक हमने फॉर्मूलाज देख लिया, रिजल्ट देख लिया, ठीक है। ये सारे रिजल्ट जो है आपको लर्न रखने हैं, रूल्स पता चल गई इंटीग्रेशन की। तो हम बहुत बेसिक से इंटीग्रेशन से वी विल स्टार्ट, जो आपके 12th टेक्स्ट बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1, वो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, करेक्ट। सो वेट अ मोमेंट, 1 मिनट वेट कीजिए, मैं ज़रा पानी पीता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन, फाइन। सो अब तक हमने पूरी इंटीग्रेशन के बारे में समझ लिया कि इंटीग्रेशन इज़ अ टूल विच मेजर्स एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कर्व्स। ये आपको पूरी लाइफ याद रखनी है। इंटीग्रेशन इज़ अ टूल फ्रॉम विच वी कैन मेजर एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कर्व्स। इंटीग्रेशन इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, फाइन। इंटीग्रेशन, this is also, you can say, its origin in the process of summation, because the word to integrate means to find the sum of, correct, that is the sense of integration. So क्या बोला हमने, origin in the process of summation, because the word to integrate, like, to integrate means to find the sum of that curve, fine. So wait for a moment, I'm just coming. Meanwhile, all of you go through the formulas. Yes dear, I believe आप लोग बोर तो नहीं हो गए। ये सारे रिजल्ट जो आपको याद रखने हैं, तो एनडीए के प्रिपरेशन में भी आपने ये सारे रिजल्ट किए थे, तो आई बिलीव ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू recall those results. So definitely it will help you here in 12th. So now we will start our exercise. ठीक है, एक दो रिजल्ट इसमें लॉग और सेक एक्स का है, वो भी देख लो आप, जो कभी कभी फॉर्मूला में दी हुई होती है। द रिजल्ट इज इंटीग्रल ऑफ cosec x dx is equals to log tan x by 2। ये भी रिजल्ट फॉर्मूला में होता है, तो ध्यान रखने का है अपने को, log tan x by 2 प्लस सी, ठीक है।
और एक रिजल्ट इंटीग्रेशन के लिए भी है। कभी कभी क्वेश्चन में या बुक के आंसर में दिखेगा ये इंटीग्रेशन आंसर, एंड दिस इज log tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। ठीक है, ये दो एडिशनल रिजल्ट है जो आप याद रखिए। cosec x, ऑल्दो हमने cosec x का लिख दिया था, sec x का भी लिखा था, बट ये भी कभी कभी रिजल्ट हमें यूज़ और आंसर में दिखते हैं, तो ये भी आपने लर्न रखना होगा। ठीक है, सो नाउ विल मूव टू आवर फर्स्ट टॉप चैप्टर, व्हाट यू कैन से एक्सरसाइज 4.1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। इसमें मैं कुछ सम लूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 1 का 1 कर लीजिए, ऐसे दिया है टाइप 1, एंड क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² minus 5 question is 3x² minus 5 whole square into dx। इसे हमें इंटीग्रेट करना है डियर, करेक्ट। तो मैं इसको I ले लेता हूँ, I इक्वल्स टू, सो इसके लिए हमें फॉर्मूला तो अंदर में ax प्लस बी फॉर्म नहीं है ये, करेक्ट। तो लीनियर फॉर्म होता तो मैं इंटीग्रेट कर लेता, बट ये 3x² है, तो इसको हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा होल स्क्वायर को। तो ये हो जाएगा 9x⁴ फाइन माइनस 30x², दिस इज 30x² एंड प्लस 25 इंटू dx। ठीक है, अब मैं सेपरेटली इंटीग्रेट कर दूं क्योंकि रूल हमें पता है। हाँ, सो मैं सेपरेट इंटीग्रेशन करने जाऊं तो 9 कांस्टेंट आउटसाइड, ये आ गया x⁴ dx माइनस 30 कांस्टेंट आउटसाइड, ये हो गया डियर x² इंटू dx प्लस 25 आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब हम x⁴n का फॉर्मूला मुझे पता है, आपने लर्न रखा है, x⁴n dx is x⁴n plus 1 upon n plus 1 plus c। ठीक है, so with the help of this formula 9 into x⁵ मैं लिख सकता हूँ अपॉन 5 और प्लस c आया, तो सभी के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को एंड में हम ऐड कर लेंगे। -30 इंटू दिस इज x⁵3/3 प्लस 25 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, और सभी के c ऐड होके c बन गए। इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट मीन्स x⁴0 dx, करेक्ट। और x⁴0 dx का क्या होगा, x⁴0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c विच इज नथिंग बट x प्लस c। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx कह लो या x⁴0 इंटू dx कह लो, याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x plus c। So finally we have the answer of this integration 9/5 x⁵ minus 10x³ plus 25x plus c। अगर आप इस आंसर को डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट दिस क्वेश्चन, करेक्ट। सो दिस वे द फर्स्ट बेसिक इंटीग्रेशन यू हैव सीन। तो आपने होल स्क्वायर था, क्योंकि मैं इसको ax प्लस बी में नहीं ले जा सकता था क्योंकि अंदर स्क्वायर है ना, तो ax प्लस बी होल n के फॉर्मूला में नहीं था, बट वी नो द होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, सो हमने एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, एंड देन वी टेकन कांस्टेंट आउटसाइड और इंटीग्रेशन डन। x⁴ x² और dx का इंटीग्रेशन आपको पता है इन रिजल्ट से। Fine, so this way we can integrate. So this is your first question. Next question we'll see what is this. Next question मैं ले रहा हूँ question number 3, where question 8 is integration of 9 minus, this is bracket है, I लिख दूँ, I equals to 9 minus x by
2 whole 8 plus 4x plus 5 whole क्यूब, ठीक है, इंटू डी एक्स। ये पूरा इंटीग्रेट हो रहा है विथ, ये पूरी एफ एक्स है, दिस इज टोटल एफ एक्स एंड दिस इज डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू विथ, करेक्ट। सो नाउ विल गो फॉर इंटीग्रेशन। तो ये अपने को ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में दिखा रहा है, ये ए एक्स प्लस बी होल एन के फॉर्म में है, करेक्ट, लीनियर है, ए एक्स प्लस बी। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है डियर, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन प्लस वन, करेक्ट, अपॉन एन प्लस वन, और एक्स के कोफिशिएंट से इंटू हो जाता है, इंटू ए, ठीक है, एन प्लस वन इंटू ए। सो आप इस रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस एक्स बाई टू होल टू द पावर 8 प्लस वन अपॉन 8 प्लस वन इंटू ए, हमारा यहाँ क्या है डियर, माइनस 1/2। केयरफुली आपको ए यहाँ समझना है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1/2, सो दिस इज -1/2 प्लस दिस इज 4x प्लस 5 होल टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ठीक है, इंटू एक्स का कोफिशिएंट 4 एंड प्लस सी। दिस इज योर इंटीग्रेशन। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज -9/2, तो ये हो गया -2/9 इंटू 9 माइनस एक्स बाई टू टू द पावर 9, and here it is plus 4x plus 5 whole to the power 4 upon 16 and finally plus c. So this is the answer of this integration, ठीक है। सो हमने स्टैंडर्ड ए एक्स प्लस बी होल एन का रिजल्ट यूज किया, जो आपको याद है डियर, ठीक है, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन upon n plus 1 into a, clear? So this way we can integration of this problem. Very simple, आपको ध्यान में रखना है x plus b whole n, a क्या है, n पावर क्या है, a हमारे इस क्वेश्चन में क्या था, -1/2, look at this -1/2, यहाँ पे a क्या है 4, so 4 यहाँ आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, these are very basic, जो आपको श्योरली आने चाहिए। Next problem it is integration of x cube I equals to, लिख लें, I equals to, पेन बहुत स्लिप हो रही है, so this is I equals to x cube plus 4x square minus 7x plus 5 divided by x plus 2 into dx, ठीक है। तो ये एल्जेब्रिक, ये रैशनल फंक्शन है, इसमें कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिए कि ये px अपॉन qx का फॉर्म है, रैशनल फंक्शन है, तो इसके अंदर ऐसा होता है डियर कि व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, करेक्ट। अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है और इक्वल है डिनोमिनेटर और डिग्री से, तो वी ऑलवेज डिवाइड करते हैं, ठीक है। कब, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो हमने क्या करना होता है, डिवाइड करके इस फंक्शन को, इस जो फंक्शन दी हुई है उसको हम स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए, रफ में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है, तो आप इसको रफ में डिवाइड कर लीजिए, x प्लस 2 से इस x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसको आप रफ में भी डिवाइड करके शो कर सकते हैं। दिस इज x स्क्वायर
सो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड कर रहे हैं 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस, तो ये रह गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। अब किससे डिवाइड हो जाएगा? प्लस 2x से, 2x से डिवाइड कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस, ये आ गया माइनस 11x प्लस 5। अब हमारा माइनस 11 से ये जाएगा माइनस 11, सो माइनस 11x और ये हो गया माइनस 22। फाइनली प्लस प्लस, तो यहाँ पे 27 रिमाइंडर रह गया। तो मैं इस न्यूमरेटर को, जो हमारा इंटीग्रल के अंदर न्यूमरेटर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो आई कैन राइट x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 एंड प्लस 27, ठीक है, डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू dx, ठीक है। सो एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन के अंदर हमने जो ये कंसेप्ट लिखा आपको EX अपॉन QX, जहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर की डिग्री यानी x की जो पावर है डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा हो और या इक्वल भी हो, तो हम ऑलवेज वी गो फॉर डिवीजन। तो मैंने ये डिवीजन करके दिखाया आपको, तो ये आपको रफ में करना है डिवीजन। तो हमारा जो न्यूमरेटर पार्ट है, न्यूमरेटर, दिस इज न्यूमरेटर, तो दिस इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, विच आई हैव रिटन हियर। ना आप इसको सेपरेट कर लो, तो x प्लस टू गेट कैंसिल, क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, सेपरेट करके हम इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर ले रहे हैं, प्लस dx, और इधर रह गया डियर 27 अपॉन x प्लस 2 इंटू dx। फाइन, नाउ विल इंटीग्रेट हियर, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे आप, x टू पावर 3 बाई 3 प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, x का इंटीग्रेशन, दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 11 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 27 कांस्टेंट, और ये आ गया लॉग x प्लस 2, क्योंकि वो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, एंड फाइनली c। इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई कर लो आप, तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 27 लॉग x प्लस 2 प्लस c, ठीक है। दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 हियर, फर्स्ट टर्म जो है एक्स क्यूब बाई, इसको यहाँ ऐसे एक्स क्यूब बाई 3। फाइन डियर, सो आपने ये एल्जेब्रिक का देखा, जिसमें क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री आप ध्यान में रखना है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो यू ऑलवेज प्रेफर द व्हाट? डिवीजन, सो दैट डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर से न्यूमरेटर स्प्लिट हो जाती है, और फिर आप इस डिनोमिनेटर से सेपरेटली डिवाइड करते हैं। x प्लस 2 से आपने डिवाइड किया दोनों को, एक x प्लस 2 एक x प्लस 2 गेट कैंसिल, तो आपका ये टर्म पूरा ये रह गया यहाँ पे, करेक्ट, और ये 27 अपॉन x प्लस 2 रह गया, एंड देन यू हैव इंटीग्रेटेड पार्ट बाई वन, 27 कांस्टेंट, 1 अपॉन x प्लस 2 का लॉग x प्लस 2 प्लस c, ठीक है। इसमें एक छोटा एग्जांपल और भी मैं ले लूँ, आप समझ के ले सकते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3, ठीक है, इंटू dx, तो ये भी आपके किस फॉर्म में दिख रहा है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिग्री सेम है, तो डिग्री सेम है तो क्या करते हैं आप? डिवाइड करते हैं,
अब 2x+3 से इसको डिवाइड कर लेंगे 4x माइनस 5 को, विच इज़ 2 से जाएगा तो ये 4x प्लस 6, तो ये आ गया माइनस, तो ये -11 रिमाइंडर हो गया। तो मैं इस न्यूमरेटर को क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 11, ठीक है। अगर आप इसको ब्रेक करो देखो आपको 4x माइनस 5 न्यूमरेटर मिलेगा, एन अपॉन 2x प्लस 3, ठीक है, इंटू dx। नाउ वी कैन सेपरेट, व्हेन यू सेपरेट दिस, so 2x प्लस 3 गेट कैंसिल, तो 2 dx, और एक इंटीग्रेशन हमारा क्या मिलेगा, माइनस बाहर कर दिया मैंने, 11 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू dx। अब आप 2 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, सो दिस इज 2x माइनस 11 कांस्टेंट, और ये dx अपॉन ax प्लस b है, तो log 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इट इज 2x प्लस 3 अपॉन 2 से डिवाइड भी हो जाएगी बिकॉज ax प्लस b है, 1 अपॉन ax प्लस b प्लस c, दिस इज प्लस c, ठीक है। सो दिस वे वी कैन इंटीग्रेट जब px अपॉन qx फॉर्म हो, रैशनल फंक्शन हो, ठीक है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो या न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर हो, तो इन बोथ द केसेस वी डिवाइड, और न्यूमरेटर को हम स्प्लिट कर देते हैं डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर से, और देन वी सेपरेट इंटीग्रेशन and we are able to get the answer of that integral, correct? Now see some more situation, some more problems. Question it is, I equals to dx upon 4x minus 1 into, ये 4x माइनस 1 है, इंटू 4x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारे फॉर्म में दिख रहा है डियर, कौन सा फॉर्म, हमने इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 देखा था, वो क्या थी, सेक इनवर्स x, ठीक है, सेक इनवर्स x प्लस c, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे x क्या है, 4x माइनस 1 के फॉर्म में है, मैं इसको डायरेक्ट सेक इनवर्स 4x माइनस 1 में डाल दूँ, अपॉन x का कोफिशिएंट क्या है 4 एंड प्लस c, दैट्स इट, क्योंकि x हमारा 4x माइनस 1 के फॉर्म में था, सेक इनवर्स 4x माइनस 1 अपॉन 4 इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। लेट्स से एक और सिचुएशन देख लेंगे, भी प्रॉब्लम दी हुई है, e to the power 2 minus 5x plus 2 upon 6x plus 1 into dx, इसका हमें इंटीग्रेशन चाहिए। सो दिस इज i इक्वल्स टू, सेपरेटली इंटीग्रेट करिए, e to the power 2 minus 5x into dx plus 2 constant outside dx upon 6x प्लस 1, करेक्ट। अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता ही है डियर, e टू द पावर x का e टू द पावर x और कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, तो e टू द पावर 2 माइनस 5x अपॉन डिवाइडेड बाई माइनस 5 प्लस 2, ये क्या हो जाएगी, log ax प्लस b का फॉर्म है, ये 1 अपॉन ax प्लस b, तो log 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस c। So finally, I equals to, we can write minus of e to the power 2 minus 5x upon 5 plus log 6x plus 1 divided by 3 plus c, ठीक है। So integration of e to the power 2 minus 5x plus 2 upon 6 plus 1 का इंटीग्रेशन ये हो गया, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं अभी आप, u प्लस बी का रूल है, अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं आप,
और इंटीग्रेशन के रिजल्ट आपको याद हैं, dx अपॉन ax प्लस b, इसका इंटीग्रेशन आपको याद है log ax प्लस b प्लस c। ये रिजल्ट याद रखने पे ये सारे आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। सी देयर द इंटीग्रेशन के अंदर कैसा है कि आप जितने रिजल्ट याद रखोगे देन इट विल बी हेल्पफुल, बिकॉज ये सब इंटीग्रेशन, इसका आंसर इंटीग्रेशन में ही होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो नहीं आएगा यहाँ। तो डियर आज के इस सेशन में मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को डिस्कस किया, व्हाट इज़ इंटीग्रेशन दैट वी हैव डिस्कस। तो आप गो थ्रू कीजिए, ठीक है। और एक्सरसाइज 4.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है, so those we will discuss in the next class. So meanwhile all of you go through all these basic formulas, ठीक है। बेसिक इंटीग्रेशन आपको लगे तो आप अपने टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल के सम भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। और एल्जेब्रिक सम भी है जहाँ से आपको मिल सकता है, जो हमने अभी तक डिस्कस किया है ax प्लस b के फॉर्म में, तो दोज सम्स यू कैन डिस्कस, ठीक है। So in next class we'll discuss some more problems of your exercise 4.1K जो type 2 है, this is type 2 जो इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है that we will discuss, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लूँ, इसमें अगर देखूँ मुझे I इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो डियर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है, ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है विच इज़ माइनस कॉस एक्स, बट साइन स्क्वायर एक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स वी डोंट नो, तो इसको मल्टीपल एंगल लाएंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, बाई 2। ऑक्सीजन याद आ रहा होगा आपको, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता था, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। सो ऐसा करने से क्या होगा कि कॉस 2x का इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो, तो आप सेपरेट करो 1/2 कांस्टेंट, दिस इज डी एक्स इंटीग्रल, और ये माइनस यहाँ भी 1/2 आउटसाइड, और ये हो गया कॉस 2x डी एक्स। अब यहाँ तो पता है आपको डी एक्स का इंटीग्रेशन x है, तो ये x/2 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डियर, साइन 2x, पहले से 2 है ऑलरेडी कांस्टेंट, और इसका भी 2 इधर आ गया, इंटू 2 प्लस c, ठीक है। सो द आंसर वी कैन राइट x/2 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c, ठीक है, साइन 2x इट इज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन ऐसे ही होंगे। तो यहाँ पे अब आपको डियर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ऑक्सीजन साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है, फैक्टराइजेशन, डी फैक्टराइजेशन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आप एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए। फैक्टराइजेशन, डी फैक्टराइजेशन, साइन सी प्लस साइन डी, साइन, ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी, ऑल सारे रिजल्ट, साइन ए प्लस बी, साइन 2a कॉस 2a, ठीक है, साइन 3a कॉस 3a, ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आप इसको रिकैप कर लीजिए, सो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में यू विल एंजॉय और इंटीग्रेशन आप कर पाएँ, ठीक है। सो फॉर टुडे इट्स 1 आवर सेशन, तो आप आराम से इसको ब्रेक करके वीडियो को देखें पार्ट बाय पार्ट, करेक्ट। एंड देन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस सम मोर इंटीग्रेशन ऑफ trigonometric and substitution we will start in the next class, exercise 4.2 also. So meanwhile all of you go through formulas, और आपको जो मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला भी लर्न रखने हैं, तो वो आप अभी से ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट किसी कॉपी में लिख लीजिए, सो दैट इंटीग्रेशन करते समय यू कैन यूज इट, ठीक है। सो फॉर मीनवाइल गो थ्रू ऑल दीज, फाइन। चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ देयर, thank you very much, we'll meet in next class, thank you।